Hello everyone. Today we are doing a few numericals. I have selected two numericals from 2010. These are the questions which are asked in 2010. It is of 4 marks and it is of 2 marks. So that means total 6 marks question from the DC circuit we are having. These two questions based on the Kirchhoff law and the potentiometer which we have done in the last video. So let us start with the first question. In the first question, let me tell you the circuit. First of all, in this circuit, this is the wire PQ whose length is 400 centimeter. The wire whose length is 400 centimeter. The length of this is a potentiometer wire. Its length is 400 centimeter. And the two resistance, this is resistance, say this is resistance X equals to 1 ohm, and this is resistance, say Y, it's equals to 4 ohms. This is resistance Y, it's equals to 4 ohms. And the ammeter is connected here. This is the battery of 10 volt whose internal resistance is 1 ohm. And we are having a galvanometer with jockey slide कर रहा है किसके ऊपर, PQ के ऊपर slide कर रहा है. So this is the circuit given to us. He is asking us to find out the ammeter reading. ammeter की reading निकालनी है. कब किस condition में निकालनी है? We have to find out the ammeter reading when the jockey does not touches the wire. What is the reading of the ammeter? That means first case two parts are there. First part में हमें ammeter की reading निकालनी है. तो when this jockey is not touching the wire, that means इस wire को jockey touch नहीं कर रही. So in this condition the figure should be something like this. Let's redraw the figure. एक बार फिर से figure को बनाते हैं. Say here we are having the resistance X. कितना है ये? 1 ohms का है. उसके बाद आगे चले जाओ. Here we are having a resistance Y. It is of how much? It is of 4 ohms. उसके बाद नीचे सीधा आ गए. Here we are having a wire PQ. यहाँ पे wire PQ को लगा दिया. This is wire PQ. ये wire P and Q है. इसकी लेंथ कितनी है? It is 400 centimeter and resistance of this wire is, इसका जो resistance है वो कितना है? से R equals to 20 ohms है. और फिर हमने इसको कनेक्ट किया नीचे एक बैटरी के साथ. बैटरी कितने EMF के, यहाँ पर क्या है? एमीटर है. एंड इसको कनेक्ट कर दिया ऐसे करके इधर. सो इसकी ये जो बैटरी है इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी जो वोल्टेज है V इक्वल्स टू कितना है? 10 वोल्ट है. और स्मॉल r की वैल्यू कितनी है? 1 ohms. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो दिस इज योर सर्किट व्हेन the jockey is not touching the wire PQ. the PQ को टच नहीं कर रही है. उस कंडीशन में आपका फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा. अब क्या करें? फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ I की वैल्यू निकालनी है. एंड बाय द बेसिक फॉर्मूला V इक्वल्स टू IR ही आपकी हेल्प करेगा. तो सबसे पहले क्या निकालते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देते हैं पूरे सर्किट का. सो फॉर फाइंडिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वी नो कि दिस एंड दिस दे आर इन सीरीज. तो यहां पे लिखते हैं RS equals to कितना हो जाएगा? 1 plus this 4 which gives me 5 ohms. ये 5 ohms आ गया. Now this 5 ohms are in parallel with this resistance. So now find out 1 upon RP. 1 upon RP will be equals to 1 upon 5 plus 1 upon 20. इसको solve करेंगे. The 20 is your LCM. LCM कितना आ जाएगा? 20. And from here we are getting 4 plus 1 which means 5 upon 20. और solve किया what we are getting 1 upon 4. So RP की वैल्यू कितनी आ गई? RP will be 4 ohms. RP कितना आ गया आपका? 4 ohms आ गया. Okay. So now we know that V equals to क्या होता है? IR. V equals to क्या है? IR. So the value of I will be equals to V upon R plus small r, and this will changes by EMF of a cell. So EMF of the cell is given to us 10. कैपिटल R की वैल्यू कितनी है? The capital R की वैल्यू अभी फाइंड आउट करिए. It is 4 ohms. And small r की वैल्यू कितनी है? It is 1 ohms. So on solving this 10 upon 5 कट आउट किया. So we are getting 2 ampere.
सो योर एमीटर रीडिंग विल बी, आई की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई है 2 एम्पियर. Okay, the value of I will be how much? It is 2 ampere. Now, after this, what we have to do? We have to find out the value of null point. That means, अब क्या करना है? जो second condition है, second condition में आपने जो galvanometer था, here we are having a galvanometer G, इसको slide कर रहे हैं. स्लाइड करने पे कहीं पर ये नल पॉइंट देगा, तो दैट पॉइंट मींस कि वो लेंथ मुझे फाइंड आउट करनी है. सो इस पॉइंट को हम लोग, ये P है, ये Q है, लेट दैट पॉइंट, इस पॉइंट को मान लेते हैं से वो कितना है, इट इज S. उस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं S. सो डिवाइड हो जाएगा, ये X हो गया, ये Y हो गया, ये PS हो गया, ये SR हो गया. इस पूरे का जो रेजिस्टेंस है कितना है वो, द रेजिस्टेंस विल बी 20 ओम. पूरी की पूरी वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम्स है. यहां से लेकर यहां तक का रेजिस्टेंस मान लेते हैं, लेट इट बी से PQM, इसको M मान लेते हैं, और यहां से लेकर यहां तक रेजिस्टेंस मान लेते हैं हम कितना है, से इट इज M. अब इसको सॉल्व करते हैं. एक बार फिगर को फिर से रीड्रॉ कर देते हैं. लेट अस रीड्रॉ द फिगर वंस अगेन. सो जब फिगर को रीड्रॉ करेंगे, द फिगर विल बी समथिंग लाइक दिस. अब देखो कैसे बन जाएगा फिगर. फिगर बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा तुम्हारा. द फिगर विल बी समथिंग लाइक दिस. सपोज ये P है, एंड फिर ऐसे आ गए आप, से यहां पर आपको Q मिल गया, और ये वायर है आपकी PS, एंड दिस इज द वायर. मैंने इसको लगा दिया ऐसे करके. दिस इज द वायर PQ. फॉरगेट अबाउट दिस पार्ट, क्योंकि करंट की वैल्यू कितनी आने वाली है, 0 आने वाली है. सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. ऐसे करके ये कितना हो गया आपका, इट इज X, इट इज Y, एंड इट इज M. ये M है, और ये M ओम्स, और इसकी X की वैल्यू कितनी है, इट इज 1 ओम्स. Y की वैल्यू कितनी है, Y की वैल्यू इज 4 ओम्स, और ये कितना है, N ओम्स. ओके, इट इज N ओम्स. हम लोगों ने पढ़ा है मीटर ब्रिज में या बीडस्टोन ब्रिज में कि दिस, द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस. सो वी कैन से N इंटू X equals to M into Y. So from here N upon M equals to Y upon X. Y की वैल्यू is 4, X की वैल्यू is 1. So we can say कि N equals to 4M. Okay, this much ohms. अब देखो, we know that जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस PQ का जो रेजिस्टेंस है, इट इज 20 ओम्स. किसके इक्वल होना चाहिए, दोनों का रेजिस्टेंस. 2 पॉइंट मैंने कंसिडर कर लिए, दैट मींस M प्लस N. यहां पे क्या करते हैं, वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ दिस N की वैल्यू पुट अप कर देते हैं. सो इट विल बी 20 इक्वल्स टू हाउ मच, M. ओके, 20 इक्वल्स टू M, एंड N को कन्वर्ट कर दिया है मैंने 4M. So it will be 5M equals to 20. So M कितना हो गया, the M will be 20 upon 5. We are having, कट कर दो इसको. So we are getting how much, 4. Okay, we are getting 4 ohms. So that means ये वाला जो रेजिस्टेंस आ गया, it will be 4 ohms. इसमें पार्ट का रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 4 ohms आ रहा है. एंड वी नो के पूरी की पूरी वायर का रेजिस्टेंस कितना है, द रेजिस्टेंस ऑफ द होल वायर इज हाउ मच, इट इज 20 ohms. सो इतने से पार्ट का रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 4 ओम. सो अब इसमें यूनिटरी मेथड को यूज कर लेते हैं. वी नो कि दैट 20 ओम्स इज द रेजिस्टेंस ऑफ 400 सेंटीमीटर का है. 1 ओम 400 अपॉन 20 का हो जाएगा. सो 4 ओम्स कितना हो जाएगा, 400 अपॉन 20 इंटू 4 किया, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5 1 जा 5, 5 8 जा. सो द नल पॉइंट विल बी एट 80 सेंटीमीटर. जो नल पॉइंट आएगा 80 सेंटीमीटर का आएगा. सो दिस इज आवर आंसर. सिमिलरली एक और छोटा सा क्वेश्चन है.
ये वाला इसको भी देख लो, ये 2010 में ही आया है बेटा, फटाफट देख लो इसको। इसमें तुमने किरचॉफ लॉ लगाना है। वी नो कि व्हाट हैपन व्हेन वी गो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जब करंट की डायरेक्शन में चलते हैं हम लोग, तो द करंट विल, जो आर की वैल्यू आती है वो क्या आती है, नेगेटिव आती है। जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो पॉजिटिव आती है। क्या फाइंड आउट करना है, इस आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो इट विल बी, यहां से चल रहे हैं हम लोग, वी आर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो वी गेट 3 into 2 मीन्स 6। ओके, माइनस आएगा, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। फिर इधर आ गए नीचे, अगेन वी आर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट मीन्स माइनस अगेन, हाउ मच माइनस 4i। अब करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं हम लोग, वी आर मूविंग अगेंस्ट द करंट, तो दैट मीन्स प्लस 12 इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम हियर वी आर हैविंग 4i प्लस 6 इक्वल्स टू 0 एंड माइनस 4i इक्वल्स टू माइनस 6, कैंसिल आउट किया, सो i इक्वल्स टू 6/4, 2 and 3, so we get 1.5 एम्पियर। सो दिस इज योर आंसर। इतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बट फिगर को देख के लगता है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आर नॉट डिफिकल्ट, क्वेश्चन आर वेरी इजी। सो आज ये वाली वीडियो देखने के बाद बेटा क्या करना है, यहाँ पे जितने भी बोर्ड क्वेश्चंस हैं, चाहे वो 1 मार्क्स का हो, चाहे वो 5 मार्क्स का हो, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल दोज क्वेश्चंस। ओके, सो फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच।